on behalf of Prabha Khaitan Foundation and Ehsaas Women of Meerut, we welcome you all to the inaugural session of Kalam in Meerut. Kalam is an initiative of Prabha Khaitan Foundation, a Kolkata-based NGO engaged in various social welfare activities and promotion of Indian culture throughout the country and beyond. Kalam was started in the summer of 2015 in Jaipur, primarily as a session of conversations with the selected authors covering their entire range of work as opposed to a book launch or book reading. Almost from the first session, the series gained immediate acceptance from the audience, and of course, the featured authors really encouraged us to keep the series going. The series was then extended to more than 25 cities in India and London. Before we move ahead, we would like to talk about the format and procedures of the event. The format is a conversation of 45 minutes, followed by question and answers by the audience for 15 minutes. Then you can proceed and pick a book for signing by the author. These books are already brought by Prabha Khaitan Foundation, which is itself an endeavor to promote literature and to support the publishing houses in an era of e-books and Kindles. Request you to pick one book per family. On this note, I would also like to mention that we are very particular about our timings and we encourage people to come on time. Please note, there are 3 parts on the process of invitation. Save the date, where you need to RSVP within the mentioned date to receive an invite which has all the details about the session. We really appreciate if you write a yes or no for this. As you see, this is a boutique literary event. The number of guests are limited. If you are not being able to make it, we would be happy to accommodate another guest for the event. Following this, one day before the event, you receive a See You Tomorrow Creative. One thing we'd like to mention is that the invites are non-transferable. Moving on with the inaugural session of Kalam in Meerut, it is my honor and privilege to welcome the talented guest author of today, Mr. Yatindra Mishra. Hindi poet, music and cinema scholar. He has four collections of Hindi poetry, several books on Indian classical music and cinema and translations. His book on Lata Mangeshkar, Lata Sur Gatha, won 6 awards in 2017, including the prestigious 64th National Film Award for Best Writing on Cinema, the Swarna Kamal, and MAMI Mumbai Film Festival Award for Best Writing on Cinema 2016-17. His latest book, Akhtari, Soz or Saaz Ka Afsana, is based on the life, times and music of Akhtari Bai Faizabadi, popularly addressed as Begum Akhtar. To be in the conversation, we have another talented personality, Dr. Poonam Devdutt. To take this session forward, I would like to welcome both of them to start this session. Request you to keep your mobiles on silent or switched off. Sit back, relax and enjoy the evening. जो लेखक भी हैं, कवि भी हैं, संपादक भी हैं और संगीत और सिनेमा का अध्ययन भी करते हैं। दोस्तों, आज की शाम श्री यतीन्द्र मिश्र के नाम। यतीन्द्र जी,
आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मेरठ की धरती पर, जिसे हम क्रांति धरा भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से 1857 की पहली क्रांति की शुरुआत हुई। आज बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। यतीन जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आपको यहाँ आकर अच्छा ही लग रहा होगा। तो हम शुरुआत करते हैं बातचीत की। आपकी सबसे नई पुस्तक अख्तरी सोच और साज का अफसाना है। दोस्तों, इस पुस्तक का विमोचन हुआ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कुछ ही दिन पहले, और आज हम इसी पुस्तक से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। यतीन जी, जैसा कि आपने अपने पहले साक्षात्कार में कहा कि अख्तरी बाई आपके जन्म से 3 वर्ष पहले दिवंगत हुई, अर्थात आपने उनको लाइव नहीं सुना। तो फिर कैसे ये प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई इस पुस्तक की? बहुत धन्यवाद पूनम जी। सबसे पहले तो मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन, कलम और मेरे वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने के लिए अपनी किताब पर बुलाया गया। आप सबको नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर आपने समय निकाला बात करने के लिए। बेगम अख्तर साहिबा से पहले मेरा काम जो है वो संगीत पर काफ़ी रहा है, रिसर्च बेस्ड। तो मैंने बहुत सारी कोठेवालियों पर, बाइयों पर, तवायफों पर बहुत अध्ययन किया, जो अभी सारे कोठे खत्म हो चुके हैं देश में, लेकिन जो भी बाइयाँ जीवित थी मैं उनके पास गया, मैंने उनको रिकॉर्ड किया, मैं उनसे मिलता रहा। उनके पुराने जो भूल बिसरा दिए गए रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड लेबल्स हैं, दादरे हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं कलेक्ट करता रहा, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। और मुझे लगता था कि जो ये पर्दा पड़ा हुआ है और जो एक शुरफा, जो एक शरीफ, जो एलीट क्लास है उसमें, और एक जो ये क्लास है उसमें जो डिफरेंस है और जो एक डिकोटॉमी है कि ये शरीफ या ये इज्जतदार महिलाएं नहीं थी, या शरीफ घर के लड़कों को इस गलत निगाह से देखा जाता था कि आपने उनसे बात कैसे कर लिया, वहाँ कहाँ चले गए। तो उनकी ज़िंदगी और दर्द के अफसाने वो मुझे बहुत लुभाते थे। और ये एक बात है एक ऑथर के तौर पर, मैं अयोध्या राज परिवार से संबंधित हूँ, वो मैं इस किताब के संदर्भ में मुझे बताना पड़ता है, अदरवाइज मैं इस बात को बहुत वैल्यू नहीं करता, ना मैं इसको बताना पसंद करता हूँ। तो वो चक्कर ये था कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के समय में राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी, उनके समय में अख्तरी बाई फैजाबाद में थी और हमारे यहाँ की दरबार गायिका थी कोट सिंगर, 1937 से लेकर 1945 तक। तो उनकी बहुत सारी कहानियाँ, उनके बहुत सारे अफसाने, उनकी दयानतदारी, दानिशमंदी के, उनके बिग हार्ट लाइफ के बहुत सारे किस्से, जीवन के कुछ प्रसंग आप जरूर सुनाएंगे। तो वो जो है वो मौजूद थे। और मैं अपनी दादी से बहुत इन्फ्लुएंस रहा हूँ, वो म्यूजिक करती थी, बेगम अख्तर से सीखा हुआ था, तो वो बहुत सारी बातें बताती थी, बहुत मज़ेदार किस्से भी थे कुछ। तो वो मुझे कहीं से समझ में आती थी कि इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। और जब मैं बड़ी बड़ी महफिलों में जाता था, जब बड़े सेमिनार्स में जाता हूँ, तो वो एक तरीके का जो एक सत्तात्मक व्यवहार होता है, ये सब क्या बात है, ये सब आउटडेटेड रूल्स हो चुका है मामला, तो मुझे बहुत खराब लगता था। मुझे लगता था कि एक महिला जिसने अपनी ज़िंदगी को अपनी ढंग से तराशा और इतनी बड़ी गायिका बनी, उनकी कहानी तो समझनी चाहिए। और इस बाबत मुझे लगा कि मैं बेगम अख्तर साहिबा पे काम करूं। और तो मैंने उनको लाइव नहीं सुना है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर उस व्यक्ति को सामने से देखे हों। मैं अभी, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, मैं कुल 40-41 साल का हूँ और बेगम साहिबा के मरे 45-46 साल हो चुका है। तो आप अगर महात्मा गांधी पर आज काम करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आपने महात्मा गांधी को देखा हो या उनसे मिले हों। आप उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं, गांधीवादी हो सकते हैं, या कुछ ऐसी बात हो सकती है, कोई एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है लाइफ में जो आपको इस बात के लिए कैरी फॉरवर्ड करता है कि नहीं ये काम करना है। तमाम जगहों पे तमाम लोगों से आप मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, जैसे मिल के अलग होते हैं, आप फेसबुक पे दोस्त बन जाते हैं, व्हाट्सएप शुरू हो जाता है और भूल जाते हैं। लेकिन शायद कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी महिला, कोई ऐसा किरदार आपको समा जाता है जो आपको हॉन्ट करता रहता है पीछे से, और कई बार आप उसको ढूंढना चाहते हैं, कई बार वो मिलता नहीं है,
या कभी किसी से ऐसे किसी मोड़ पे मिलते हैं, आपको लगता है अरे इसको तो बहुत दिन से जानते थे। ये आज मतलब बहुत सारे आप लोगों के आम जीवन में हुआ होगा कि जिनसे आपकी दोस्तियां हुई होंगी और कुछ बहुत सहज रिश्ते बने होंगे और कुछ रिश्ते ऐसे बने होंगे जिनको आपने बना के बिसरा भी दिया होगा। सौभाग्य से बेगम अख्तर साहिबा एक ऐसा किरदार है जो इतिहास में से निकल कर बार बार याद दिलाती हैं कि देखो मैं भी हूँ और मेरी भी जिंदगी रही है कुछ। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कुछ अभी कही है। तो ये आपने जो आपका भावना है आपकी कि जो एक विरासत हम भूलते जा रहे हैं, ये पूरी कला की जो जिनको हम कोठेवालियाँ कहते थे, लेकिन वो एक किस्म से कलाकार थी, उनके अंदर भी ये संगीत की विद्या थी और उसको आपने संजो के रखने वाली बात करी। तो ये मैं बहुत ज़्यादा इसको महत्व देती हूँ कि ये एक हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको आपने संजोने की बात सोची। एक बात और है मैम, सिर्फ कल्चरल ट्रेडिशन की बात नहीं है। जब हम किसी की बात करते हैं, कल गुड़गांव कलम में भी मैं यही सब बोल रहा था कि आप किसी स्त्री के बारे में बात करते हैं, किसी पुरुष के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, उस समय उसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य पर भी बात कर रहे होते हैं। जिस समय यतीन्द्र मिश्र पर बात हो रही होगी, जिस समय पूनम जी पे बात हो रही होगी, जिस समय आज की डेट में रणवीर सिंह या दीपिका पादुकोण पे बात हो रही होगी, उस समय का अपना एक सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है। उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन है, उस समय इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उस समय देश में धार्मिक मान्यताएं क्या है, उस समय क्या चल रहा है, इसका भी इतिहास भूगोल सामने आता है। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज से 100 साल पहले तक, 150 साल पहले जब बाइयों का एक जमाना था, उस समय ब्रिटिश इंडिया रही, उस समय रूलर्स रहे, उन लोगों ने तमाम तरीके से इनको गलत संदर्भों में प्रक्षेपित किया। जो ब्रिटिशर्स ने अपने वो लिखे, गजेटियर्स लिखे, उसमें सारी फनकारों को नॉच गर्ल्स की तरह ट्रीट किया कि दे आर ऑल नॉच गर्ल्स, और कहीं ना कहीं से वो जो पूरी परंपरा है वो प्रोस्टिट्यूशन की परंपरा है, जो कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं था, वो एक कॉर्टिजन परंपरा थी, बाइयों की लंबी परंपरा, जिसमें वो बैठकर महफिलें करती थी और आपको संस्कारित करती थी। आपने बहुत सुना होगा, अवध की कहानियों में सुना होगा, फिल्मों में दिखाया गया है कि बिगड़े हुए नवाब के साहबजादों को तमीज सिखाने के लिए कोठों पे भेजा जाता था। तो कोठों पर अगर कोई माँ या बाप अपने औलाद को, जवान लड़के को भेज रहा है, तो ये इतनी आश्वस्ति तो है ना कि वो लेडी स्पॉइल नहीं करेगी, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी, बल्कि कुछ तमीज ही सिखा के लौटाएगी। तो ऐसे तो नहीं हो सकता था। और मैं बहुत हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कह रहा हूँ कि हमारे देश में हिंदी फिल्मों ने बड़ा नुकसान किया है। वो जैसे मैं राज परिवार से हूँ, तो जब मैं छोटा था तो दोस्त मुझे ऐसे देखते थे, क्योंकि राज परिवार का जो राजा है वो सिर्फ कोड़े मारता है और पनघट पे जो औरत है उसको छेड़ता है, उसको उठा लेगा, उसके साथ बदतमीजी करेगा, या वो ऐसे मुकुट पहन के बैठा होगा, ऐसे नुकीले जूते पहने होगा कि उसके नीचे जो कोई खरगोश भी आ जाए तो दब के मर जाए। ऐसा नहीं होता है। ये जो कैरिकेचर प्लॉट किया जाता है वो फिल्म के लिए तो ठीक है, सामान्य जीवन में नहीं होता। तवाइफें भी जिस तरह से फिल्मों में दिखाई जाती है, घाघरा चोली पहन के, टोपी लगा के, ऐसी कोई तवाइफ कहीं नहीं मिलेगी हिंदुस्तान भर में। जो कुछ भी आपको एनेक्डोट्स मिलेंगे, जो कुछ भी आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे, उन बिचारियों के पास तो हार्डली 1-2 साड़ियाँ होती थी, जो अच्छी साड़ियाँ होती थी, दामी साड़ियाँ महंगी, वो पहन के जाती थी और महफिल करके चली आती थी। और अगर महिलाओं ने, क्योंकि महिलाएं भी बराबर से बैठती थी नाच देखने, एक चिक या पर्दा पड़ा होता था दालान में, वो पीछे से बैठ के देखती थी और आगे से पुरुष वर्ग बैठ के देखता था समाज। तो अक्सर जब किसी नाचने वाली बाई को कोई घर की महिला, क्योंकि घर की औरतों के बगैर तो पुरुष कुछ कर नहीं सकते, तो अगर किसी को कुछ देना चाहें, अगर पुरुष का मन भी है कि उसको एक साड़ी दे दे, तो पहले अपनी बेगम की तरफ देखेगा कि उसका इशारा क्या है। तो वो अगर उनका दिल पसीज जाता था तो वो साड़ी दे देती थी। उसी तरह के हैं जी। तो ये होता था। तो वो जो है वो एक बहुत दूसरे तरह की दुनिया थी। और पहले के समय में, जिस समय फारसी और अरबी और भारत में तमाम भाषाएं प्रचलित थी और तमाम सारा जो उसकी दीवानी की भाषा जब उर्दू थी, तो जितने तरह के एनेक्डोट्स मिलते हैं, जितने तरह के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उसमें 3 तरह की औरतों का जिक्र है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे वो सारी महिला फनकार हैं, कोठेवालियां हैं, जिनको मालजादी कहा जाता था। मालजादी का मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड वुमेन।
जो माल कमाती थी नाच करके, जो रेवेन्यू कलेक्टर थी। सेकेंड नंबर पे आती थी शहजादी, जो राजा या नवाबों या सामंतों की बेटियां होती थी, जो प्रिंसेस होती थी। और थर्ड होती थी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की वो लड़कियां जो अपने घरों में रहती थी, पढ़ती लिखती थी और एक समय पे, निश्चित समय पे उनका विवाह हो जाता था, वो होती थी शरीफ जातियां। तो शरीफ जाति, शहजादी और महालजादी, ये कैटेगरी थी भारत में। भारत में कभी नॉट गर्ल्स कोई कैटेगरी नहीं थी। भारत में ब्रिटिशर्स लाके सैनिटाइज करने लगे, देवदासी एक्ट बनाया और मंदिरों से देवदासियों को डांस करना बाहर कर दिया। इस देश में एक सूचना प्रसारण मंत्री हुए अर्ली 50s में, बीजी केसकर साहब, उन्होंने एक जियो निकाला, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला कि AIR में वो ही महिला परफॉर्म कर सकती है, जा सकती है, या तो अपने नाम के आगे देवी लगाए और या वो शादी करके आए। वो अपना मंगलसूत्र पहन के और सिंदूर लगा के अगर वो आगे अपना पट्टा दिखा देती है कि शी इज ए मैरिड वुमेन, तब वो लेजिटिमाइज है परफॉर्मेंस के लिए। अदरवाइज वो खराब औरत है, वो दुष्ट औरत है, उसका चाल चलन खराब है। अब आप देखिए ये सैनिटाइजेशन तब से शुरू हो गया। तो इसमें तमाम सारी बाइयों ने, तमाम सारी गायिकाओं ने अपने नाम बदले और जो सब बाइयां थी वो सब देवियां हो गई। मैं किसी एक पर्टिकुलर नाम पे बात नहीं करूंगा, मैं जनरलाइज असेसमेंट बता रहा हूँ आपको। तो क्या होता था कि इन महिलाओं का, सर मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होगा बात करने, तो इन महिलाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हमने, हमारे समाज ने, हमारे जो रूलिंग करने वाले लोग थे, उन लोग या जो हमारे क्रॉनिकलर्स थे जिन्होंने इतिहास भूगोल लिखा, उन्होंने सब दाएं बाएं किया, सब गड़बड़ किया। बेगम अख्तर साहिबा के साथ भी यही हुआ। तो मुझे लगता है कि वो भी कहानी किसी को कहनी चाहिए, वो बात बतानी चाहिए। आज कोई लड़की डांस करती है, आज का कोई महतरमा अपना परफॉर्मेंस करती है, तो उन पे फेमिना या सैवी या दुनिया भर की मैगजीन उनका इंटरव्यू छापते हैं, हम उनको पद्म अवार्ड देते हैं। लेकिन उस जमाने में अपनी रोजी रोटी, क्योंकि हमारे पास कोई और तालीम नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये हुनर है कि हम घुंघरू पहन के नाच सकते हैं या एक दादरा गा सकते हैं। और दादरा गाने का लांछन ये है कि साहब आप शरीफ, आप कुलीन औरत नहीं है। तो अगर शरीफ और कुलीन औरत होने का कोई सर्टिफिकेट दूसरा होता है तो वो बताएं, तो वो ऐसा नहीं था। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू पेयर से थे रीना तलवार ऑल्डनबर्ग, जिन्होंने अवध पे बहुत काम किया है। उन्होंने एक पूरी थ्योरी दी है कि जब इनकम टैक्स के जो आपके कर वसूलने वाले आते थे, तो जो ग्राहक होते थे भाइयों के, वो दो तरह का रजिस्टर बनता था। एक तो हिडन रजिस्टर होता था जो छुपा के असली बात लिखती थी कि फलाने राजा ने हीरे का हार दिया, लेकिन बाहर के रजिस्टर में लिखती थी कि 2 रुपए परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपका टैक्स लिया जाएगा। तो असली वो भी दिमागदार थी महिलाएं, उनको खूब मालूम था कि समाज को कैसे चलाना है और इनके सबके साथ डील कैसे करना है। तो आप ये देखिए कि वो बहुत समृद्ध समय था। समृद्ध समय इसलिए था कि वो सारी परंपरा, वो सारी गायकी, वो सारा डांस आज तक चला आया और उस पे दुनिया भर के रिसर्च होते हैं, इंडोलॉजी स्टडीज में काम होता है। अब तो भारत के बाहर भी वो इंडियन स्टाइल ऑफ डांसिंग के नाम पे बॉलीवुड का डांस होता है। तो मैं ये कहना चाहता था कि एक जॉनर विशेष के लिए, एक पर्टिकुलर, एक पूरी सभ्यता की स्वीकृति के लिए कितनी महिलाओं ने अपना नाम खराब किया होगा, हम आवाज चाह के भी जान नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा आपने इस प्रकार से प्रकाश डाला इस ज्वलंत सोशल इशू पर कि जो महिलाएं गुणी थी, कलाकार थी, कलाओं में माहिर थी, नृत्य, संगीत, एक तरह से विद्या में माहिर थी, उनको इस तरह से बदनाम करके वो पूरा कल्चर ही खत्म कर दिया गया। आप बताएं ना, एक जमाना था कि किसी शरीफ घर की लड़की हीरोइन नहीं बन सकती थी, वो गंदी लड़कियों का काम है, शादी नहीं होती तुम्हारी। मेरी ग्रैंडमदर ने बेगम अख्तर से सीखा है, लेकिन राजा साहब की हिम्मत नहीं थी कि दुनिया में ये बता सकेंगे मेरी बेटी भी बेगम अख्तर से सीखी, क्योंकि वो राजकुमारी है, वो किसी बाईजी से कैसे सीख सकती है, वो सीखेगी तो उसके शादी नहीं होने वाली। तो ये होता था। पहली बार जब एक सॉलिसिटर की बेटी दुर्गा खोटे फिल्मों में आई, तो बाकायदा दादा साहब फाल्के ने माया मच्छिंद्र फिल्म के उसपे जो उसका वो टाइटल था, उसमें आया कि वेलकम द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फलाने सॉलिसिटर मिस दुर्गा खोटे। तो मतलब इस तरीके से प्रचार होना शुरू हुआ कि साहब एक अच्छे घर की भी महिला आ सकती है। तो ये सारी चीजें आज तक भी होती हैं। आज भी बहुत सारे घरों में हम लोग डिबेट करते हैं, हम लोग डाइनिंग रूम डिबेट करते हैं, हम लोग जाके टीवी पे करते हैं, हम लोग जाके किसी पार्टीज में और अपने पार्टीज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर जब घर लौट के आते हैं तो बेटी को मना कर देते हैं, नहीं नहीं
चौकिया कर लो, ये आप स्टेज पे जाके तो नहीं नाचेंगी आप, क्योंकि आप IAS की बेटी हैं, आप फलाने की बेटी हैं। तो जब आज ये चला आया तो उस जमाने में तो बिल्कुल ठीक कहा आपने यतीन जी। तो यतीन जी कुछ हमें बेगम अख्तर से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएं। मुझे लगता है ये सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन एक मजेदार बात है, वो बहुत होशियार महिला थी, बहुत मतलब दीवा सॉर्ट ऑफ उनका एक मामला था। रामपुर के नवाब रजा अली खान साहब उन पे बड़े आशिक थे, खुद उनकी बेगम थी, तो रोज कुछ कुछ सौगात भेजते रहते थे, उसमें से निकाह कर लो। वो दूसरी बेगम नहीं बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि अपनी पहली बेगम को वो तलाक दें, तब फिर मैं विवाह करूं। तो वो करती नहीं थी, लेकिन गिफ्ट सब ले लेती थी और उनको उलझाए रखती थी अपने अदा में। तो एक दिन उनकी सहेली ने बोला ये सब लिखा हुआ है रिकॉर्डेड, तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत चालाक हो बेगम, तुम अख्तरी, तुम रजा अली खान को क्यों परेशान करती हो, हर दिन कुछ रामपुर से भेज देते हैं गिफ्ट तुम्हारे लिए, तो तुम मना कर दो, तुम्हें शादी नहीं करनी। तो वो एक चांदी के सोफे पे बैठी थी, उन्होंने भेजा हुआ था उनको, तो बोली ये देख रही हो कुर्सियां दोनों चांदी की, बोली हाँ। बोली जब तक इस जोड़ की मेज नहीं भेज देता नवाब तब तक उसको मना नहीं करेगी। वो जोड़ा लगा रही थी अपने चांदी के कुर्सियों के साथ। गुड बिजनेस वुमन। हाँ, गुड बिजनेस वुमन। और उनकी माँ उनसे 4 महिलाएं ऐसी हुई इस देश में जिनसे बड़ा मैंने मतलब उस जमाने में बहुत भविष्य देखने वाला या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड या जिसे कहें कि हाई फाई सोसाइटी को समझने वाला, एक थी मुश्तरी बाई जो बेगम अख्तर की माँ थी, दूसरी थी जद्दन बाई जो नरगिस की माँ थी, तीसरी थी मेनका बाई जो शोभा गुट्टू क्लासिकल सिंगर की माँ थी, और एक थी शमशाद बेगम जो इनकी माँ थी, नसीम बानो की माँ थी, दिलीप कुमार की सास की माँ। तो इन्होंने ये किया कि लखनऊ नया नया बन रहा था और हजरतगंज का इलाका डेवलप हो रहा था, ये मैं बता रहा हूँ आपको बात 1937-38 की। तो सारी औरतों के, सारी भाइयों के कोठे पुराने एरिया में होते थे, नखास एरिया में, चौक एरिया में, कि जहाँ पे सबको पता है कि ये बदनाम बस्ती है, यहाँ पे महिलाएं डांस करती हैं। बेगम अख्तर की माँ ने उनको समझाया कि नहीं नहीं, तुम अपना कोठा हजरतगंज में बनाओ। सबसे ज्यादा जो अलीट क्लास का जो समय होने जा रहा है, जो 50 साल आगे जाकर के लखनऊ जहाँ पे रूल करेगा, जहाँ पे DM का भी बंगला बनेगा, जहाँ पे दीवानी भी बनने वाली है, जहाँ पे हॉस्पिटल हो रहे हैं, जहाँ मार्केट है, जहाँ सेंट फ्रांसिस कॉलेज बन रहा है, वहाँ पे कोठा बन रहा है बेगम अख्तर का। उसका नाम रखा गया अख्तर मंजिल 1938 में, और उसकी बड़ी 4 दीवारी बनाई गई, और कोई भी बड़ा आदमी वहाँ आसानी से जा सकता था, क्योंकि साहब वो तो शरीफ इलाके में आके बस गई, तो शरीफ दवाया था और उस पर कोई प्लॉट नहीं लगता था। वो एक लेजिटिमेट मामला था कि नहीं साहब हम एक शरीफ घर, कुलीन घर में जाकर के नाच देखने वाले थे, और कोई भी पुरुष ऐसे नहीं घुस सकता था। 7 दिन तक लगातार वो, जैसे उनके 4 मुस्टंडे पले हुए थे जो आज के इंग्लिश लैंग्वेज में बाउंसर्स कहते हैं, तो बाउंसर्स भी उन्होंने रख रखे थे। तो बाउंसर्स जाते थे, बाउंसर्स नोट करते थे कि साहब ये फला साहब आए हैं, फलाने गुप्ता जी आए हैं और ये 7 दिन तक आए हैं लगातार। हाँ, गुप्ता जी में बुरा न मानेगा, मैं मिश्रा जी भी कह सकता हूँ, तो फलाने मिश्रा जी आए हैं। तो 7 दिन तक जब वो आकर अपनी प्रेजेंस दिखा देगा, तो 8वें दिन वो पर्ची अंदर जाती थी बेगम अख्तर के पास कि अच्छा ये इतने पगलाए हुए हैं मेरा नाच देखने के लिए। तो उनपे कुछ इंपोर्ट किया जाता था कि आप मछलियां ले आए, रोहू मछलियां ले आए, या आप बढ़िया पान ले आए, तो वो उनसे टैक्स भी किया जाता था। तो वो इस तरीके से वो महफिलों में खाने पीने की व्यवस्था ये लोग करते थे। फिर उनको एंट्री मिलती थी और सबसे लास्ट सीट मिलती थी। फिर धीरे धीरे वो आदमी, तो एक कनोसर, एक आपका रसिक, एक आपका चाहने वाला 2-2.5 साल बाद जाकर के कहीं आपका लेजिटिमेट ग्राहक बनता था, जिसको आगे का सोफा मिलता था। उसके बीच में पता नहीं कितनी सेवैयां खिला देता था, कितने पान खिला देता था, कितना गोश्त और मुर्गा भेज देता था, कुछ उसका अंदाजा नहीं है। ये बातनेस थी बेगम अख्तर की। लेकिन बेगम अख्तर का जमाना था, बेगम अख्तर का दौर था, फिल्मों में काम करती थी। मेगाफोन उनका इश्तिहार करता था कि अख्तरी बाई फैजाबादी फिल्म स्टार। तो अब फिल्म स्टार के नाम पर उनका प्रचार प्रसार होता था। खुद मेरे घर में जब वो आती थी परफॉर्म करने, तो मेरी दादी बताती थी कि जिस कार से, जिस खुली हुई मर्सिडीज बेंज कार से महाराज टहलते थे, वो कार उनको लाने के लिए जाती थी। ये उस जमाने का सबसे बड़ा हाई लेवल का रिकॉर्ड था जो उस जमाने की बाई को दिया जाता था। और जब मैं एनेक्डोट्स कलेक्ट करने लगा रजवाड़ों के और पुराने, तो मैंने ये देखा कि लिच्छवी गणराज्यों में जो राजनर्तकी होती थी
उसको राजा के बराबर का दर्जा दिया जाता था। मतलब कोर्ट में राजा जितनी ऊंचे आसन पे बैठेगा उतने ही ऊंचे आसन पे राजनर्तकी बैठेगी, राजपुरोहित भी नीचे बैठेगा। तो ये ट्रेडिशन है इंडिया में राजवाड़ों का वो देने का। और मैंने जितने राज रियासतों में बात की, जितने ब्रिटिश गजेशियर्स में पढ़ा, उसमें मुझे पता लगा कि इन सबकी ये कीमत थी। महाराज बड़ौदा के यहाँ, सियाजी राय गायकवाड़ के यहाँ जो सबसे बड़ा सेंटर था रॉयल पैट्रोनेज फॉर म्यूजिक, उस जमाने में सिद्धेश्वरी देवी को और बेगम अख्तर को 1100 चांदी के सिक्के और ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट और 4 बनारसी साड़ियां मिलती थी एक परफॉर्मेंस के लिए। एक परफॉर्मेंस मींस इट इज नॉट मोर देन 2 घंटा। 2 घंटे में वो अपना जो भी खड़ी बैठ की महफिल करें। 1100 चांदी के सिक्के, आज सोचिए अच्छी असली सोने चांदी के काम की 4 बनारसी साड़ियां देखिए और फर्स्ट क्लास का टिकट, आज आप जे क्लास का एयर टिकट मान लीजिए उसे, ये सब जोड़कर ये परफॉर्मेंस फीस थी बेगम अख्तर की, ये परफॉर्मेंस फीस थी सिद्धेश्वरी देवी की। तो मैं बस ये सब चीजें, ये मैं इसमें मेरी कोई बात नहीं है, ये मैं वो इतिहास बता रहा हूँ जो शायद आपको पता ना हो। तो ये सारा इतिहास भूगोल सिर्फ ये बताने के लिए है कि इनकी इज्जत कितनी थी। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इस चीज पे रोशनी डाली। और मैं तो ये कहूंगी कि हम आज विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट दीज वर द एम्पावर्ड विमेन हु हैव बीन पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। और हम पता नहीं कहाँ खो गए इसी सब, हम तो किसी पार्टी में खो गए और हम ये फेसबुक पे करने में खो गए कि हमने बहुत अच्छी कढ़ी बनाई है, लगाई है, आपकी सहेली लिख रही है कलकत्ता से, वर्चुअल कढ़ी देख के वाह बहुत अच्छा लग रहा है, अरे घर बुला के खिला दो। हमारी किस काम का है आपकी वर्चुअल खीर या कढ़ी? कोई कायदे की बात करो फेसबुक पे आके, कोई कायदे की बात करो इंस्टाग्राम पे आके। ये होता रहता है। मेरे दोस्त की पत्नियां कहती रहती हैं, भैया आप लाइक नहीं करते, हम क्या करें? आप रोज साड़ी बदल बदल के रोज मेकअप कर करके लगा रही हैं, मेरे किस काम का है? आपकी एनिवर्सरी होगी मैं जरूर आके लिखूंगा, आपकी बर्थडे होगी मैं जरूर आके लिखूंगा, होली दिवाली में नमस्ते कर लूंगा, सलाम कर लूंगा। अब रोज ही आपको एक काम करना है, आपने एक किटी पार्टी की किसी में बैठे और आपने ऐसे करके खींच लिया और वो लग गया। क्या करें भाई, दूसरे और बहुत बड़े काम है हमें करने को। सही कहा आपने। और ये पुरुषों के लिए भी है, ये जितनी औरतें करती हैं उससे 10 गुना पुरुष लोग भी करते हैं। क्या करें साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो यतीन जी, अभी तो हमने बात की बेगम अख्तर की, बट हु इज यतीन मिश्रा? We would like to know. I think my audience मैं एक बहुत साधारण सा लेखक हूँ और मैं मतलब एक कवि के रूप में जाना पसंद करूंगा और एक अच्छे इंसान के रूप में मरना पसंद करूंगा। जिस दिन मैं इस दुनिया में न रहूं, लोग ये जरूर कहें लेखक शायद थोड़ा कम अच्छा रहा होगा, इंसान बहुत अच्छा था, एक नेक इंसान की तरह जीवा। यतीन जी, कुछ अपनी प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। आपकी यात्रा एज ए राइटर कहाँ से, आप शुरुआत कहाँ से हुई? तो कुछ। मैं पोएट्री लिखता था और मैं माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, माइक्रोबायोलॉजी में मेरी मास्टर्स की डिग्री है। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और घर से मैं इस तरह से साउंड था कि मुझे रोटी कपड़े मकान की तुरंत जरूरत नहीं थी कि मुझे वो उस तरह के संघर्ष करने थे। घर वाले मेरे बहुत खुले हुए, बहुत ही खुला वातावरण है, तो मॉडर्न ख्याल के, तो उनको था कि तुम्हें जो करना है करो, अपने मन का करो। तो क्योंकि मैं म्यूजिक में बहुत इंडल्ज था, मैं सिनेमा में इंडल्ज था, मैं पोइट्री में इंडल्ज था, तो मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन वो जैसे शौकिया होता है कि अच्छा कर लो टाइप से, फिर कुछ धंधे करना टाइप, तो वो नहीं कर पाया मैं। मतलब मुझे लगा कि मुझे सर्विस करने नहीं जाना है, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, एक गंदी छाया ये भी होती है छोटे शहरों में कि अगर आप थोड़े संभ्रांत हैं, थोड़े पैसे वाले हैं और थोड़ा आपका रुतबा रसूख है, तो साहब विधायकी क्यों नहीं लड़ते हैं? साहब राजनीति में क्यों नहीं आप हाथ आजमाते हैं? अरे साहब हमको नहीं राजनीति में कुछ रास आता है। राजनीति करने का मतलब कि पहले मैं आपसे मीठा बोलूं और आपके हट्टे आपको चूरा मारूं तो मैं बहुत सफल राजनीतिक होऊंगा, वो मैं कर नहीं सकता। तो मुझे लगा कि राजनीति भी अपने काम की नहीं है, क्या करें? तो मैंने अपने को एक लेखक के तौर पे जीना पसंद किया और मैं सौभाग्यशाली हूँ, इसका सारा क्रेडिट मेरी फैमिली को है कि मुझे लेखक बनने की छूट मिली। और ये मैं ईश्वर को धन्यवाद करूंगा कि मैं लेखक बन भी गया, क्योंकि मैं मशहूर होता चला गया, मेरा काम मशहूर होता चला गया, काम मिलने लगा, लिखने लगा। मेन स्ट्रीम राइटिंग में जो नए लोग लिखते हैं उसमें थोड़ा बहुत मेरा नाम शुमार हो गया। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ बुरा नहीं है, पैसे भी कमाने लगा, इज्जत भी कमाने लगा। ऐसे संदीप भुटोरिया जैसे कुछ सिलसिले दोस्त मिल गए जो मेरा नाम आगे कर दिए कि नहीं तुम्हें जाना है,
मैं मना कर रहा था कि मुझे मेरे अभी मत भेजो, 2 महीने बाद भेजना, मैं गुलजार साहब की किताब कर रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं, इनॉग्रेशन तुमसे ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे दोस्त तो जिंदाबाद, कि ऐसे दोस्त रहे तो फिर आपकी दुकान चलती रहेगी। तो संदीप भटोरिया जैसे दोस्तों का मतलब मैं झंडा उठाया रहता हूँ, वो मेरा झंडा उठाया रहता है, ये हिडन एजेंडा है हमारा। तो ऐसे करते रहते तो एक म्यूचुअल सपोर्ट है, हिडन एजेंडा नहीं, तो बहुत अच्छा एजेंडा है तेजी। और 2 जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। आपने कहीं पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि आप ऐसी चीजें लिखना, जैसे आपने बहुत सारे कलाकारों के बारे में लिखा है, आपने बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिखा है, आपने लता मंगेशकर पे बहुत अच्छी किताब लिखी है, तो आपने कहा कि मैं उनकी कलाकारी के बारे में लिखना पसंद करता हूँ, उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा आप नहीं जाते। तो मैं समझ गया कहना चाह रहा, ये मुझसे हर जगह पूछा जाता है। असल में क्या है कि मैं बहुत ही क्षमा मांगते हुए ही अपना आर्गुमेंट करूंगा। क्या होता है जब आप बायोग्राफी करते हैं, किसी के बारे में लिखते हैं, तो जनरल ये अप्रोच होता है, खास करके मीडिया से भी माफी मांगते हुए, खास करके आपके दोस्तों का और समाज का, पाठकों का। साहब इसमें आपने मतलब लता मंगेशकर का मैंने काम किया, उनकी म्यूजिकल जर्नी पे काम किया। हर दूसरा आदमी, हर बड़ा पत्रकार मुझसे पूछता था आपने अफेयर नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि किसके साथ उनका लफड़ा था। अरे यार, वो भारत रत्न हो चुकी है, उनकी गले की बात पूछो, उनकी गायकी पे बात करो, उनके संघर्ष पे बात करो। 13 साल की उम्र में फादर मर गए, 5 सिबलिंग्स को पाल रही, उस पे बात करो। नहीं, एक बड़ी मैगजीन से आया कि समथिंग जूसी इन देयर, मैंने कहा नहीं, नथिंग इज जूसी इन देयर। बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे पूछा गया कि कोई बेडरूम सीन है, और ये स्टेज पे पूछा गया, आप जा करके गूगल में उसमें यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई बेडरूम सीन नहीं है इसमें। तो मैंने कहा बेडरूम सीन है, लेकिन गलती से वो सब ग्रीन रूम में कन्वर्टेड है, क्योंकि बेडरूम में बैठ के वो रियाज करती थी। तो ऐसे ऐसे कह के मैंने अपनी इज्जत बचाई। मेरा ये अप्रोच रहा है शुरू से कि मैं किसी कलाकार के बारे में जानूं, उसकी जिंदगी जरूर बताऊं, लेकिन अगर उसका कुछ बहुत पर्सनल है ऐसा जिसको बिना बताए आपका काम चल सकता है, तो मुझे आपको नहीं बताना चाहिए। आप डॉक्टर के पास गए हैं अपनी जुकाम का इलाज कराने के लिए, आपको वो जुकाम का इलाज कर देगा, आप उससे उम्मीद क्यों करते हैं कि वो कैल्शियम की गोली भी देगा, मल्टीविटामिन भी लिखेगा आपको? जाइए बाद में पूछिए किसी से। तो वो एक जैसे होता है ना कि 10 रुपए के तमाशे में सब रंग देख लेना चाहते हैं आप। तो मैंने किसी से कहा, मेरा झगड़ा हुआ एक बड़े पत्रकार से, उन्होंने कहा आपने कुछ भी लव अफेयर नहीं लिखा। मैंने कहा आप क्यों नहीं लिखते? लता मंगेशकर मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, और छापने वाले मौजूद हैं। मेरी किताब अगर 10,000 कॉपी छपी, आपकी 1 लाख छपेगी, आप लिखते क्यों नहीं? आप मुझसे क्यों ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं लिख के दूं? एक बात तो मैं इसलिए नहीं करता। दूसरी बात, मुझे जरूरी नहीं लगता, एक पर्सपेक्टिव होता है कि उस पर्सपेक्टिव से आप बात करते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव लता मंगेशकर के लिए उनकी म्यूजिकल जर्नी को लिखना था। मेरा पर्सपेक्टिव बिस्मिल्लाह खान साहब के कि वो उनका एक इंटीग्रल पार्ट है कि इंटीग्रेशन का उनका एक मामला बनता है कि वो मुसलमानों के भी उतने ही खास हैं, हिंदुओं के भी उतने ही खास हैं। वो बाबा विश्वनाथ के लिए शहनाई बजाते हैं, वो रमजान में नौहा करते हैं, सब करते हैं। तो मैंने वो किया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा था, मैं बिस्मिल्लाह खान साहब पे बोल रहा था। तो किसी ने मुझसे कहा कि बिस्मिल्लाह खान साहब पे तो बड़े लोगों से झगड़े बड़े थे। अच्छा, बिस्मिल्लाह खान साहब ने मुझे सब सुना रखा था कि बाप भैया वो फलाना कलाकार वो बहुत हरामी है, सॉरी ऐसे बोल दिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, भैया वो बहुत हरामी है। तो हमने कहा ठीक है उस्ताद क्या करें, तो उनके बारे में खूब खुल के बोला। फिर जब मैं किताब लिखने लगा तो बिस्मिल्लाह खान मतलब रिकॉर्ड खत्म कर लिया, तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा हमने नाराजगी में बोल दिया है भैया, लिखिएगा नहीं, खराब लगता है। तो मैंने कहा नहीं लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके जितनी बातें उन्होंने नाराजगी में या गुस्से में या जेलसी जो भी कह लीजिए कही थी, वो उन्होंने मना कर दिया। मैंने किताब लिखी, और मैंने किताब तब लिखी जब बिस्मिल्लाह खान साहब मर गए। तो किताब रिलीज हुई तो एक सज्जन उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खान साहब ने तो फलाने को डांट दिया था, ये किया था, वो किया। तो मैं जरूर किया होगा, आपकी किताब में नहीं है। तो मैंने कहा सब नहीं है। तो बोले तो आप तो बहुत अधूरा कच्चा काम करके आए हैं, आपको तो सब झगड़े भी लिखने चाहिए थे। मैंने कहा सारे झगड़े मुझे पता है, मेरे को रिकॉर्डेड है, मैंने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा आपने? आपने गुमराह किया। आपने कहा अरे वाह, मैंने शहनाई के बारे में कहानी बताई, उनकी पूरी जीवनी सुनाई है, मैं नहीं समझता कि ये झगड़े मुझे आपको या नई जनरेशन को बताने चाहिए। तो बोले कि ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने कहा बिस्मिल्लाह खान साहब ने वादा लिया था कि भैया इसको लिखिएगा नहीं। बोले वो तो मर गए, कौन देखने आ रहे हैं। मैंने कहा तो क्या मैं बचा रहूंगा? मैं भी तो किसी दिन मरने वाला हूँ। मैं जिस दिन मर के जाऊंगा तो चाहे जन्नत में बैठे हो चाहे दोजख में बैठे हो, वो डंडा लेके बुढ़ा मुझे दौड़ाएगा
कि तुमने मेरे से वादा खिलाफी की, तो मैं उस दिन, उस कयामत के दिन के लिए बचाएंगे अपनी इज्जत। तो बहुत ताली वाली बजी उस पर। तो फिर वो बाद में उठे, बोले ये क्या बात होती है। मैंने कहा देखिए, एक एथिक्स होता है। अगर आप लिखते हैं और अगर आपने किसी से वादा किया है कि मैं आपके इस पक्ष पे बात नहीं करूंगा, आपको नहीं पसंद है, जबकि वो पक्ष गॉड है, वो पक्ष प्रमुख नहीं है, वो रिलेवेंट या वो डोमिनेटिंग नहीं है, मैं क्यों लिखूं। मेरे लिए जिस दिन लता जी नहीं होंगे इस दुनिया में, हजारों साल बाद भी अगर आवाज बची होगी, संगीत बचा होगा, तो लता जी किस बात के लिए जानी जाएंगी? एक अच्छी आवाज के लिए, अपने कुछ गानों के लिए। तुलसीदास आज नहीं है, तुलसीदास ने क्या किया, ये महत्वपूर्ण है कि रामचरितमानस आपके पास है। तो मैं इस एस्पेक्ट से देखता हूँ, और शायद मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, एक तमीज का एक एहतराम होना चाहिए। लता जी की किताब मैंने जब कंप्लीट की, ये मैं ही जानता हूँ और उनका सेक्रेटरी जानता है, तो मैं लेके गया किताब उनको पूरी वो दिखाने के लिए स्क्रिप्ट। तो वो उस दिन मिलने से इनकार कर दिया, उन्होंने मुझे प्रभु कुंज में नहीं बुलाया, बोले कि ये वापस लेके जाओ। तो मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा 6 साल मैंने मेहनत की है, लगता है नाराज होने क्या बात है। तो मैंने कहा दीदी क्या करें। बोले कि मेरा सेक्रेटरी जा रहा है आपके पास, आपसे बात करेगा। मैं होटल में रुका था, फिर वो सेक्रेटरी आया 3-4 घंटे बाद, बोले दीदी बात करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने उनको फोन मिलाया। बोली किताब छपने के पहले मैं नहीं चाहती हूँ कि किताब मेरे घर में आए और किसी के हाथ में पड़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब किताब छप जाए तब लोग जाने कि मैंने किसके लिए क्या बोला। मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है। तो मैंने कहा लेकिन देखेंगी कैसे, आप देखेंगे नहीं तो कैसे तय होगा। बोली बेटा तुम पे भरोसा करती हूँ, भरोसा करके ही तुम्हें बताया है, और तुम मेरे पोते की उम्र के हो, और 80 साल की थी तो मैंने काम शुरू किया था, जब 88 साल की हुई तो किताब रिलीज हुई 87 साल की। तो बोली मेरे ग्रैंडसन की उम्र के हो, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। फोन पे बोला। मैंने कहा बोलिए। बोली कि पूरी जिंदगी इज्जत से गुजार आई हूँ, ऐसी कोई हरकत न करना लिखते समय कि बुढ़ापे में रुसवाई हो। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, और ये कहे कि फोन कर दिया, किताब का एक पन्ना चेक नहीं किया। द बुक वॉज 678 or 700 पेजेस। मैं घर बड़े भारी मन से लौट के आया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि गलती से भी कोई गलती न की हो। गलती से गलती का ये कतई मतलब नहीं कि मैं कोई उनकी स्याह सफेद कर रहा हूँ, कि मैं कोई बदजुबानी ना कर दूं जो एक इतनी बड़ी महिला के साथ बात खराब कर दूं। और वो किताब उस स्क्रिप्ट के आने के 1 साल बाद प्रिंट में गई। 1 साल तक मैं अपने स्क्रिप्ट से जूझता रहा, उस वजन के शब्द तौलता रहा कि कोई चीज दायमाई न हो। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मतलब इस बात से खुश हूँ कि मुझे अवार्ड मिले, सब चीजें हुई। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि लता जी की इज्जत में मैंने 4 चांदी लगाए होंगे। बहुत खूब आपने जो बातें बताई। यतीन जी एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते उस पहलू पर भी कुछ बात करूंगी। जैसे हम कहते हैं कि म्यूजिक से हमें सुकून मिलता है, हम सब म्यूजिक सुनते हैं अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए। आपने क्योंकि इतने कलाकारों से बातचीत की है, उनको करीब से देखा है, तो क्या जो कलाकार हैं, जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, जो गाते हैं, उनकी जिंदगी में सुकून है? बहुत अच्छा कि आपने सवाल किया। ये भी लता जी और बिस्मिल्लाह खान साहब के हवाले से बताऊंगा। मैंने लता जी से पूछा कि आपका एक समय था, आपने बहुत राज किया फिल्म इंडस्ट्री पे, और तमाम सारी आपकी बदमाशियों की कहानियां, ये ऐसे लिखा भी किताब में, तो आपने बहुत परेशान किया होगा लोगों को, रिकॉर्डिंग कैंसिल करवाई होगी। बोले हाँ मैंने रिकॉर्डिंग कैंसिल करवाई है, लेकिन मैंने बदमाशी में नहीं कराई। जिस दिन मेरे पेट में दर्द हुआ है उस दिन करवाई है, जिस दिन मुझे पेचिश आई है उस दिन मैंने कराई। ये ऐसे बोला है लता जी। जिस दिन मेरा सरदर्द हुआ है, मुझे वॉमिटिंग हुई है, मेरी तबीयत खराब हुई है, मुझे वायरल हुआ है, उस दिन मैंने किया। और मैं ऐसे भक्त से हतप्रभ से उनको देख रहा हूँ कि लता मंगेशकर को भी पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि हम और आप ये सोचते नहीं है ना, हम और आप ये सोचते क्या सुरीली आवाज है, क्या सुंदर बात हो रही है। अनारकली फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था जून महीने में फिल्मिस्तान के उसमें, जो उनका अपना शेड 13 शेड, रात में, क्योंकि रात में ट्रेनें नहीं चलती थी तो आवाज नहीं होती थी, और पंखा नहीं है, पंखा बड़े बड़े जो पंखे चलाए जाते थे तो वो खड़खड़ करते थे, तो वो रोक दिए गए। धूल भरी जमीन पे बिना पंखे के बम्बई जैसी वाहियात गर्मी के मौसम में 3 शेड तप रहा है, और ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, जैसा गाना रिकॉर्ड कर रही है लता मंगेशकर।
तो हमको और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इन औरतों ने कितने संघर्ष किए या मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने कितने संघर्ष किए। तो एक बात तो ये कि इनकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें रही हैं, जिन तकलीफ़ों पर हमने कभी बात नहीं की। और दूसरी बात, कभी हम इस ओहदे से अलग हटके कलाकारों को नहीं देखते हैं। आजकल सेलिब्रिटी होने का शौक चल रहा है लोगों को कि हर शहर में सेलिब्रिटी मिलते हैं, चाहे उनको उनके मोहल्ले के लोग न जानते हो, लेकिन वो पेज 3 मटीरियल होते हैं, सेलिब्रिटी बन के घूमते हैं। तो लेकिन ये लोग असली सेलिब्रिटी, ये बड़े लोग हैं, लेकिन कभी कोई नखरे नहीं किए, कभी कोई हरकत नहीं की। मैंने पुराने लोगों से जाके बात की, फिल्म इंडस्ट्री के रिकॉर्डिस्ट से बात की। लता मंगेशकर ने जिस दिन कह दिया, किशोर कुमार ने जिस दिन कह दिया, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने जिस दिन कह दिया, वो दिन आके रिकॉर्ड कराया, परफॉर्म किया, 102 बुखार में परफॉर्म किया, गाया, सारी चीज़ें की, तकलीफ़ें झेली। तो हम आप ये सोच भी नहीं सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां जैसा आदमी, और वो गरीबी में फाका करते हुए शहनाई बजाते रहे हैं। कभी एक बार उनको कहना पड़ा जब उनको भारत रत्न मिला कि मुझे भारत रत्न नहीं पेट्रोल पंप चाहिए, जिसपे बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि वो अपने सामने अपने बच्चों को सेटल करके जाना चाहते थे। उनको लगता था मैंने जिंदगी भर क्या किया या क्या पाया तो कुछ मेरे बच्चे पा जाए मेरे नाम पे। हम आप समझ नहीं पाते, हम आपका मतलब वो तमाम समाज जो इनको इस निगाह से देखता है और इनको इस पेडेस्टल पे देखता है। तो कलाकार को या किसी बड़े आदमी को, बड़ा आदमी पैसे से बिल्कुल बड़ा नहीं, बड़ा आदमी जो अपने हुनर से बड़ा है, उसको इस निगाह से भी देखिए कि उसका भी सरदर्द हो सकता है, उसको भी तकलीफ हो सकती है। हम और आप 1000 सेल्फियां खिंचाते हैं, तब उधर वो होटल में घुसते हैं और दौड़ के पूछ के फोटो खिंचाते हैं और फिर उसको खाने भी नहीं देते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो ये देखना चाहिए कि वो भी एक आम इंसान है। गुलजार साहब को देखते देखते, मैं उनके 25 साल से उनके संबंध में हूँ, आज गुलजार साहब 85 साल के हो गए। तो कभी वो थकते भी हैं, कभी परेशान भी होते हैं, कभी उनको उस तरह से भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इनके समय के दर्द हैं। और खुद बेगम साहिबा तो बीमारी से मरी और उनको उस जमाने में उसका इलाज संभव नहीं था, तो उनको जो भी समस्याएं रही, तो पैसे रुपए के मामले में भी अच्छा क्या होता है, हम मतलब मैं थोड़ा शायद क्रिटिकल हो रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही, हम जाते हैं बड़े शोरूम में गहना खरीदने, चाहे गाड़ी खरीदने, चाहे साड़ी खरीदने, उसका पैसा भी कम कराते हैं। बड़े प्यार से वो आपको दिखाएगा और आप अपना ईगो सेटिस्फाई करते हुए 50,000 की साड़ी, गहना, सॉलिटेयर सब खरीद के लेके आते हैं। एक बढ़िया सा चाय पिलाता है, एसी में भी खाता है, फिर आप आके पहनते हैं और अपने लोगों पर रौब गालिब करते हैं। लेकिन जिसने जिंदगी घिस के जिंदगी हराम कर दी, वो जब आपके शहर में परफॉर्म करने आता है तो बड़े बड़े लोग कहते हैं जरा पता करो कितना पैसा कम करेंगे। कहीं को पैसा कम कराते हो उसका भाई, उसकी साधना में अगर आप योगदान नहीं कर सकते, हर चीज फॉर ग्रांटेड, हर चीज फ्री की नहीं होती है। आप क्यों फ्री में लेना चाहते हैं किसी से? आप अगर आपको ये लगता है कि आपको बेगम अख्तर को सुनना है या अगर आपको किशोरी मोनकर को सुनना है और अगर वो अपने पैसे मांग रही है और आपको वो जस्टिफाइड लगता है तो आप पैसा दीजिए, नहीं तो अपने घर बैठिए, आप अपने टेप पे सुनिए, आप सीडी खरीद के सुनिए, आप उसको डाउनलोड करके सुनिए, उसका अपमान मत करिए बुला करके। बेगम अख्तर साहिबा से एक बहुत बड़े सज्जन, बहुत बड़े पारखी उनका संगीत सुनना चाहते थे, अकेले में सुनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा मैं कलकत्ता आऊंगा और अकेले गाना सुनाइएगा मुझे, इंदौर के थे, इसमें किताबें थी। तो उन्होंने नाराज हो गई, बोली अकेले में क्यों गाऊं, 2,500-3,000 रुपए लेती थी, अर्ली 60s का मामला है। तो उन्होंने कहा मैं 5,000 रुपए लूंगी, तो तैयार हो गए 5,000 देने को। और पहुंचे तो बेगम साहिबा को लगा कि अरे दूने दाम पे मुझे बुलाया जा रहा है सुनने के लिए, तो पहुंच गए। और जब परफॉर्मेंस के लिए बैठी तो वो अकेले बैठे थे, वो पहले थी, तो जैसे उन्होंने सा लगाया अपने गाने का, उन्होंने रोक दिया कि अब रुक जाइए। तो घबरा गई, उनको लगा कि मैंने क्या गलती कर दी। तो बोली कि नवाज साहब क्या गलती कर दी? बोले कोई गलती नहीं की, आपने 5,000 मांगा था, आपने सा लगाया, इतने में ही खर्च हो गया, अब और पैसे जुटा के लाऊंगा तो दूंगा, आपकी कला इतनी बड़ी। से वो बड़ा सा आनंदिता जी ने दिखा दिया। 5 मिनट है कि 10 मिनट है? 5 मिनट है। तो मेरे ख्याल से दिस फॉर कन्वर्सेशन और फॉर तो एक आखिरी सवाल आर्टिस्ट के बारे में आपसे और पूछना चाहूंगी। ये जो पुस्तक आपने लिखी है आखिरी, इसमें बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारे कलाकारों के, संगीतकारों के। तो इतने सारे लोगों से डील करने में आपको पर्सनली कोई, जैसे हर कलाकार का ईगो होता है, हर कलाकार का अपना विषय भी होती है,
तो आपको कोई कठिनाई आई? जी आती है, हमेशा आती है। और कई दफा क्या होता है, मैं उसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। जैसे मुझसे कोई कहता है साहब फलानी चीज लिख दीजिए, तो क्यों लिख दूं आपके लिए? आप बताइए, आप इस बात को जस्टिफाई करिए कि आपके लिए मुझे लिखना जरूरी है। लोग कहते हैं हम पत्रिका शुरू कर रहे हैं, कविता भेज दीजिए। अरे वो था काहे को भेजने का पत्रिका में आपकी कविता? अभी पत्रिका इस लायक होगी, जरूर भेजेंगे। तो ऐसे मैं गया जब सबके पास कि आपको करना है। मैं खुद से लिख सकता था बेगम अख्तर पे अकेले पूरी किताब, लेकिन मुझे लगा कि बेगम साहिबा आप नहीं है दुनिया में, उनके तमाम सारे शिष्य, उनके साथ बजाने वाले, उनको देखने वाले, समझने वाले लोग जीवित हैं, सौभाग्य से जीवित हैं अभी बहुत लोग। तो उनको सबको मैं अगर इकट्ठा कर दूं तो एक बड़ी किताब बनेगी। तो मुझे अपने को इस तरीके से साबित करना पड़ा कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि आप मेरे लिए काम करें, और लोगों ने किया। और अगर आप ईमानदार हैं तो आपके लिए लोग करेंगे, आपको करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो मीराबाई राजरानी थी, लेकिन उनके लिए ऐसा मिथ है कि कृष्ण को आना पड़ा, उन्हें मोक्ष देना पड़ा, उन्हें दर्शन देना पड़ा। तो अगर कोई इस लायक है, कोई इस पाए का है बेगम अख्तर साहिबा जैसा किरदार, कि जिसके पास मैं गया हूँ वो थोड़े नखरे भी करता है, तो नखरे बर्दाश्त है। अपनी गर्लफ्रेंड के नखरे आदमी उठाता है, तो बड़े कलाकार के भी उठाने चाहिए। जी यतीन जी, चलते चलते आखिरी प्रश्न। हमारे जो युवा हैं जो कि शायद कलाकार बनना चाहें, आर्टिस्ट बनना चाहें, लेखक बनना चाहें, और पेरेंट्स कहते नहीं इस सब में कुछ नहीं रखा, इंजीनियरिंग पढ़ो, डॉक्टरी पढ़ो, उनके लिए आपके पास कुछ राय हो, कुछ संदेश हो? मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी को राय दे सकूं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ जो मैंने किया और जिससे मुझे फायदा मिला, कि पहले जो नए लोग हैं, जो युवा हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, बस दो चीज करें। एक तो खुद से ईमानदार रहें, खुद के लिए, अपने हुनर के लिए। एक बात जो बहुत बड़ी बात है, खुद की ईमानदारी। दूसरा, ये जरूर सोचें कि जो करना चाहते हैं और जिस काम की एवरेज में करना चाहते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स ने कहा है कि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस इसमें आ जाओ, और वो नहीं करना चाहते, IAS बनना है, डॉक्टर बनना। पेरेंट्स दुश्मन नहीं होते, पेरेंट्स आपको सिक्योर देखना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तो पेरेंट्स को ये समझाने में कामयाब हो कि नहीं, मैं ये कलाकार बनते हुए ही सुख पाऊंगा और मैं एक दिन अपने को साबित करूंगा, तो पेरेंट्स भी शायद मान जाए। और तीसरी बात, ये जो सबसे जरूरी है, जो मैंने किया, कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम लेखक तो बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे साथ का जो कंटेम्परेरी दोस्त है तुम्हारा, वो कल को सांसद या विधायक या कुछ बड़ा आदमी बन के तुम्हारे सामने खड़ा होता है और पूरी दुनिया उसके आगे जलवा नुमाया है, तो तुम्हें एहसास कमतरी तो नहीं होगी, तुम्हें कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा। इस बात के लिए तैयार रहें कि आप अकेले पढ़ सकते हैं, आप कमजोर रह सकते हैं, आप असफल रह सकते हैं। आप अपनी शर्तों पे अगर अपनी असफलता को कैरी कर सकते हैं तो आप जाएं बाहर। मैं आज यति परमेश्वर हूँ, मेरे साथ के दोस्त लोग मिलियनर बने हुए हैं, बड़ी इंडस्ट्री बना के बैठे हुए हैं, मैंने कुछ लाख रुपए कमाए हैं किताब लिख के। ये मेरा खुद का निर्णय था, मुझे इस पे गर्व होना चाहिए। अगर ये गर्व करने का भाव मेरे अंदर नहीं है तो बेहतर है कि माता पिता की बात मान लें और सिर्फ गाना सुनते रहें, पिक्चर देखते रहें, काम ना करें, क्योंकि संघर्ष की राह आपको अकेला करती है और आपको बहुत दुखी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद यतीन जी। और अब मैं आई एम श्योर हमारे ऑडियंस में से बहुत से लोग कुछ प्रश्न कुलबुला रहे होंगे आपके अंदर, तो हम कुछ प्रश्न आपसे ले सकते हैं। कोई भी कुछ पूछना चाहे या जो भी आप पूछना चाहें, कहना चाहें जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैंने कोई गलती की हो, नहीं सर, किसी को कोई चीज खराब लगी हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर सब माफी मांगता हूं। जो लास्ट आपने कहा सर, वो मुझे बहुत पते की बात लगी और मेरे दिल को पूरी तरह से छू गई कि अगर कुछ कलाकार बनना है या कुछ इसमें जाना है तो जो कंपैरेटिव स्टडी है वो माइंडसेट बदलना होगा, वो दोनों अलग डायमेंशंस हैं। और मैं बस केवल एक सवाल, क्या वैसे सब कुछ आपने इतना कुछ बता दिया कि सवाल लायक बचा नहीं है, और मैंने बहुत अच्छा जो है मुझे यहाँ के लगा आपको सुन के, मतलब एक अलग लेवल पे पहुँच गया। और पता नहीं यहाँ रिवील करना चाहिए नहीं, मैं भी शौकिया करता है, जरूर बताएं भाई, करता हूँ, लिखता हूँ। वैसे मैं बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ लॉ में, लॉ डिपार्टमेंट में से प्रोफेसर हूँ, मेरे कॉलेज यहीं बराबर में ही है। और मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ, जैसे सबकी भूमिकाएं सेट होती हैं कि हम डॉक्टर से चाहते हैं कि वो अच्छा इलाज करे,
वकील से चाहते हैं अच्छा केस लड़े, ऐसी लेखक या कवि की जिम्मेदारियां क्या होती हैं समाज के प्रति? बहुत सुंदर बात है, कल भी मैंने इस पर बात की थी। एक तो आपने जो कहा, मैं अपने उदाहरण से कहूँगा कि मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे सारे कज़न, मेरे मौसियों के बच्चे, बुआओं के बच्चे, सब तमाम और एक्सटेंडेड फैमिलीज में कोई इंजीनियर हुआ, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में गया, ये हुआ। अच्छा, जितना आपकी असफलता आपके माँ बाप नहीं बताते, आपके रिश्तेदार बताते हैं। तो हर लड़का काकी, हमारा लड़का तो ही कर ले, है ना। और अवधि में ऐसे हमारे यहाँ तो हर लड़का काकी तू अभी तो वही कर रहा है। वो आपको पिंच करते हैं कि देखो मेरा लड़के ने, मेरी बेटी ने मेरे तीर मार दिया, कोई बात नहीं। तो मेरी माँ बड़ी परेशान हो, बोलेंगी अरे वो फलानी मौसी का लड़का, फलानी नानी का नाती। तो मैंने कहा करने दो ना, हम जो कर रहे हैं करने दो। माँ को नहीं समझ में आता था, मेरे पिता को समझ में आता था। अच्छा, लड़कों का क्या होता है कि हमेशा इंक्लाइन माँ की तरफ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पिता की तरह होना चाहते हैं, अपने पिता को प्यार करने लगते हैं, माँ की इज्जत करते हैं और पिता की तरह बनने लगते हैं। तो कुछ कुछ मेरे साथ ही हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपने जीवन से, तो मैं ऐसे ही आई एम द स्पिरिट पार्ट ऑफ द फैमिली। जबकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मेरे खाने कमाने के लिए कहीं कोई झंझट नहीं है, मतलब वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। दुनिया भर के हमारे बिजनेस हैं और रियल एस्टेट का काम है, सब कुछ। उसके बाद भी तुम्हारा लड़का तो इंजीनियर नहीं है ना, वो तो राइटर है। लेकिन जब मुझे पहली बार राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका मिला, जब मुझे पहली बार विज्ञान भवन में राष्ट्रपति ने बुला के पुरस्कृत किया, जब मेरे नाम पे लेजिटिमेसी खानदान को मिलनी शुरू हुई, तब वही मौसियां, वही चाचियां, वही बुआएं कि हमें भी कार्ड चाहिए वहाँ, हमारी भी बहू को बुला लेना, एक सीट मिल जाए वहाँ पे घुसने के लिए। आपकी बहू को वो प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि वो पैसे कमाओ ना जाके पैसे। हमने इज्जत कमाई, अब हमारी इज्जत में भी आकर के बंटवारा करोगे यार। तो ये तय करिए, ये आपके बच्चे तय करें कि क्या कमाना है, एक बात। दूसरा, जो आपने कवि होने की और लेखक होने की जिम्मेदारी की बात की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है ईमानदारी। किसी ने कल पूछा था कि कितना दिमाग से लिखना चाहिए, कितना दिल से लिखना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा चीजें जाननी चाहिए। देखिए, एक लेखक का काम है एक स्वस्थ वातावरण बनाना लिखने पढ़ने का। उसको वैसे कहूंगा कि अगर आपके पास कोई तथ्य है, जैसे मेरे पास बेगम अख्तर की कहानियां हैं, तो मैं उतनी ईमानदारी से वही बातें आपके सामने रखूं जो जरूरी हैं, जो सही हैं। गलत बिल्कुल बयानी न करूं, झूठ बिल्कुल मत बोलो, वर्बोसिटी न करूं, और उसको ऐसा रखो कि आपको लगे कि हाँ ये बात हुई होगी। ये वैसे ही कि आपने रात में चने भिगोए हैं, तो सुबह हल्का सा नमक और नींबू डाल के दे दीजिए, वो बड़ा हेल्दी है उसके लिए, खाने के लिए, आपके बच्चे के लिए। लेकिन आपने भिगोए चने और उसमें इतना तूफान मचाया, वो ऐसा छोला बना के निकाला आपने कि पता चला वो पेट खराब करेगा, वो काम मत करिए। ऐसा काम मत करिए कि पता चले आधी हकीकत आधा फसाने वाला मामला हो। तमाम, मैंने लता जी पे काम किया, तमाम झूठी कहानियां प्रचलित है, बड़े बड़े लोगों ने फैलाई हुई है, क्या करें साहब। और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के गूगल से चेप के, इंटरनेट से चुरा के, दूसरे की वॉल से जा करके 4 लाइनों को अपने 9 लाइन बनाकर, ये सब काम ना करिए। सिर्फ ईमानदार रहिए। आपके अंदर की एक फीलिंग अगर कहती है कि आपको लिखना है, मैम से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप राइटर्स ब्लॉक के लिए क्या करते हैं। मैंने कहा राइटर्स ब्लॉक जैसी चीज होती नहीं। तो आपने कहा होती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपकी होती है। उसको राइटर्स ब्लॉक क्यों कहते हैं? उसको ये कहिए कि हम प्रिपरेशन के पीरियड में हैं, वो गैजिटेशन पीरियड है। पेट में बच्चा आता है, उसको भी तैयार होने में 9 महीने लगते हैं। माँ उसको पालती पोसती, अपने खून से, अपने अंश से बड़ा करती है। 6 महीने में बच्चा नहीं बना सकते, ईश्वर नहीं बनाता। किताब कैसे बनाएंगे आप, जो आपके पास अनुभव नहीं है, जो आप अपने पेट में माँ की तरह, बच्चे की तरह धारण करिए ना उसको। फिर देखिए, प्रकृति एक दिन आपका प्रसव करा देगी, आपका राइटर्स ब्लॉक तोड़ देगी। हेलो, नमस्कार। गुलजार के ऊपर आने वाली है, और इसके साथ एक दूसरा प्रश्न कि जैसे आप मशहूर कवि हैं, तो क्या 4 पंक्तियां हम सबको सुनने को मिल जाएंगी? सर, मैं उस जमात का कवि हूँ जिसको अपनी कविता याद नहीं रहती, और जब मुझे अपनी कविता याद नहीं रहती तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि समाज को मेरी कविता याद रहे, क्योंकि एक तरीका होता है कि लोगों को कविताएं, हम लोग फ्री वर्ड्स की कविताएं करते हैं, और मैं लेकर के नहीं आया हूँ, हालांकि मेरे फ़ोन पे पड़ी होंगी तमाम कविताएं। गुलजार साहब पे मैंने काम किया है, कविताएं मैं लगातार लिखता रहता हूँ, बहुत कम छपाता हूँ, हालांकि मेरे 2-3 संग्रह हैं, प्रकाशित हैं, और बाकी और बहुत सारे काम करता रहता हूँ। एक समय में मैं कई काम करता हूँ,
जो आ जाता है और थोड़ा मस्त मौला टाइप का आदमी हूँ, क्योंकि किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है मुझसे कि तुम्हें लेखन ही करना है। मुझे आज लगता है कल को मैं पागल हो जाऊंगा और मुझे लगेगा नहीं मुझे सिनेमा बनाना चाहिए तो मैं सिनेमा बनाने लगूंगा। कल को मुझे लगेगा नहीं मुझे कोयले की खदान में जाकर के बिजनेस करना है तो मैं थोड़ा सा उस तरह का आदमी हूँ। और मुझे लगता है कि हर उस कलाकार को, लेखक को वैसे होना चाहिए। लेखक के बाने में रह करके और थोड़ा सा फैब्रिकेटेड हो जाना, थोड़ी नकली बातें करना, थोड़ा अपने को कुछ लगाने लगना, ये सब नहीं करना चाहिए। और जो करते हैं मुझे लगता है वो फूल्स पैराडाइज में जीते हैं। सौभाग्य से मैं ऐसी परवरिश में रहा हूँ। और अयोध्या तो बड़े बड़ों का पानी उतार देती है। हमारे भगवान को 14 वर्ष के लिए भेज दिया वनवास के लिए, तो हम लोग तो ऐसे शहर से आए हैं, बीतरागी शहर से, कि जो है हैसियत पे रहते हैं, पैर हमेशा जमीन पे रहते हैं। अगले कलम में बुलाइएगा, सिर्फ कविताएं सुनाऊंगा। मैडम सबको पूछने दीजिए, मैं तो पत्रकार हूँ, बाद में पूछ लूंगा। यतिन जी, मैं तो ऐसे आपको कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं संगीत प्रेमी हूँ, इसलिए 2-3 मेरे प्रश्न हैं। एक तो आपने शायद अपनी किताब में कहीं लिखा है या मैंने कहीं पढ़ा है कि जब मदन मोहन साहब अपने गजलों की धुन तैयार करते थे तो शायद वो बेगम अख्तर से उस ट्यून को सुनते सुनाते थे, ऐसा शायद आपने जिक्र किया है। वो वाकया जरा बताएंगे? कोई बड़ा रोचक, क्योंकि 70 के दशक तक आते थे, बेगम अख्तर साहिबा कहाँ खो गई थी, आपकी किताब से हमने उनको तलाशा। क्या बात है? तो आप उस वाकया को थोड़ा सा बताएं, उसके बाद एक प्रश्न और आपको तंग करूंगा, दोनों प्रश्न आप सुनाएं। अगला मैं ये पूछना चाह रहा था, चूंकि सरहद पार पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े गायक, उस्ताद सलामत अली खान, अमानत अली खान, मेहदी हसन, गुलाम अली, हम सबके प्रशंसक हैं, हमारे देश में इतने बड़े बड़े सिंगर, तो जब आप दोनों देशों के संगीत की तुलना चूंकि करते ही होंगे, करना भी चाहिए, आप इतने मर्मज्ञ हैं संगीत के, तो आप एक भारतीय संगीत को कहाँ कितना खड़ा पाते, दोनों देशों की गायकी को अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें? बहुत अच्छी बात है। मदन मोहन जी के संदर्भ में ये है कि दोनों लोग दोस्त थे, बेगम अख्तर और मदन मोहन, तो वो दोनों में ऐसी यारबाशी दोस्ती थी कि साथ में बैठ के शराब पीना, खाना खाना। वो पूरा इंटरव्यू में है शांति हीरानंद की, उनकी शिष्या थी, कि जब वो बॉम्बे जाती थी तो वो उनका ड्यूटी रहती थी कि तुम कैप्स्टन की सिगरेट का पैकेट लेके आओगी, शराब लेके आओगी, ये करोगी, तो गाना गाते थे। तो ये इल्जाम लगाती थी बेगम साहिबा कि तू मेरी गजलों की धुनें चुरा लेता है और अपनी फिल्मों में डाल देता है। और वो इतने उनसे मुतासिर थे, इतने उनसे इम्प्रेस थे बेगम साहिबा से, कि हर धुन जब भी बनाते थे तो आधी रात को भी जब बनाए तो उनको सुनाते थे फोन पे कि ये धुन सुनिए, और बेगम अख्तर उसमें उनको कुछ बताती थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और आप खुद देखिए भारतीय फिल्मों के संगीत, हिंदी फिल्म संगीत में गजलों का जो मेयार मदन मोहन के पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं, इवन नौशाद साहब के पास नहीं। तो वो हो सकता है कि उनकी दोस्ती का मामला रहा। 2 गजलों का जिक्र है इसमें कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, या भैया ना धरो बलमा, वो बिल्कुल उन्होंने बेगम साहिबा की उठाया मदन मोहन ने। योगेश प्रवीण एक अवध के बहुत बड़े जानकार हैं लखनऊ के, वो उनको अब्बासी साहब ने ड्यूटी लगाई जब उनकी मृत्यु हुई तो वो गए, वो भी जिक्र है इसमें। तो गए तो उनकी कब्र पे गए फूल चढ़ाने के लिए मदन मोहन साहब, तो वो बताते रहे कि जिस तरह से वो कब्र से लिपट के रोए हैं और लगातार रोते रहे कि उनका दिल बैठ गया कि इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए, इतने परेशान थे मदन मोहन, ना कुछ खाया ना पिया, पागलों की तरह। तो ये मौसीकी के लिए, म्यूजिक के लिए, उस पर्सनालिटी के लिए उनका एहतराम है। और दोस्तियों पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की दोस्तियां कलाकारों की नहीं है, एक दूसरे से समझने की और एक दूसरे से संबल लेने की। हालांकि मजेदार तथ्य है कि लता जी से थोड़ा सा नाक से कोड़ती हैं, कहती बेगम अख्तर को मेरे सारे गाने पसंद थे, लेकिन कहती थी कि वो एक गाना कमबख्त तुम बहुत अच्छा गाई हो जो मुझे बहुत खराब लगता है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब बेगम अख्तर की पसंद देखिए कितनी बड़ी गायिका थी, लेकिन लता मंगेशकर का गाना को वो उस गाने में पसंद करती है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया। और लता जी को लगता है कि ये ऐसे ही साधारण सा गाना, इसमें कौन सा तीर मारा है, अरे तारीफ करनी है तो किसी बड़े गाने की करनी चाहिए। ये बड़े कलाकारों का मामला है। और जो आपने कहा भारत पाकिस्तान के संदर्भ में, मैं आप थोड़ा सा क्षमा चाहते हुए कहूँगा, ये कुल 50-60 साल पुरानी बात है जिसको आप भारत पाकिस्तान का संगीत कह रहे हैं। सन 47 से भारत पाकिस्तान है साहब, उसके पहले जो पूरा अखंड भारत है और जिसमें पाकिस्तान और आधे से ज्यादा अफगानिस्तान सब शामिल है, दो या 3 स्कूल ऑफ थॉट थे म्यूजिक के। एक लाहौर स्कूल ऑफ थॉट था, एक बंगाल स्कूल ऑफ थॉट था, एक पंजाब स्कूल ऑफ थॉट था। तो इनमें सारी रवायतें थी। पटियाला घराने का संगीत है, पटियाला से ज्यादा वो लाहौर में गाया जाता है। ठीक,
टप्पा जो है शौरी मियाँ अवध में बैठे थे, लेकिन टप्पा सब पाकिस्तान और बलूचिस्तान एरिया में गाया जाता था, क्योंकि वो कैमल ड्राइवर सॉन्ग था। कैमल जब वो ऊंट चलाने वाले जब जाते थे तो वो अपना पश्तो और वो थोड़ा सा उसमें शाहमुखी में गुरुमुखी में गाते थे। तो आप ये देखिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इधर उधर सब फैला हुआ है, चितर बितर गया है। तो अब उसका वो मामला नहीं रहा। जैसे इसको बहुत साधारण ढंग से अगर कहें तो किसी लड़की के जीवन से देखना चाहिए, एक ऐसी स्त्री के जीवन से जो विवाहित है। एक औरत का मायका जहां है वो सारे संस्कार वहां से पाती है, अपनी माँ से सीखती है, सारी चीजें लेती है, और विवाह होकर किसी दूसरे प्रदेश में जाती है, अपने पति के घर में जाती है, फिर उसकी सास का कानून शुरू होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होगा, हमारे यहाँ ये होगा। अब वो करती तो है सास वाला, लेकिन उसके मन में मायका जिंदा रहता है, माँ जिंदा रहती है, तो वो पकवान भी बनाती है, वो धीरे से वो भी अपने पति को खिलाती है, कंडीशनिंग करती है। पति देव जो है वो अपनी माँ के हाथ का खाए हुए हैं, वो वैसे ही खीर चाहेंगे। पत्नी धीरे से उसमें जुगत लगाती है, थोड़ा इन्वेजन करती है, और वो क्योंकि वो उसको अपना मायका जिंदा रखना है, तो अपने स्वाद में जिंदा रखना है, अपने संगीत में वो भजन गाती है भाई दूज के दिन जो मायके में सीखा है, जो नंदों ने सिखाया वो नहीं गाती। तो पूरा जो कैरेक्टर है, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसका, ट्रेडिशन का, उसके घर का, वो कुछ मायके वाला और बहुत कुछ ससुराल वाला हो जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐसा ही कि वो जहां भी गाया जाएगा वो अपने प्रभाव लेके आएगा। लखनऊ में जो संगीत है, बिंदादीन महाराज के यहाँ का जो संगीत है, वहां पे जो अपने नवाबी का संगीत है, उसमें पंडित बिरजू महाराज ने आकर के कुछ तोड़फोड़ कर दी है। बिस्मिल्लाह खान ने उत्तर प्रदेश का संगीत क्या है, सिर्फ अवध का तो संगीत नहीं है। मेरठ में जो आपके यहाँ नौचंदी का मेला होता है, कितनी चीजें होती हैं, कितनी चीजें, कितने तरह के ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स यहाँ किए जाते हैं। तो अगर एक कोई रिप्रेजेंटेशन है, प्योरिटी कहीं नहीं, सब कुछ मिला हुआ है, और सब कुछ बहुत भावुकता से, बहुत आदर के साथ मिला हुआ है। वो वैसे ही मिला हुआ है जैसे मेरी माँ आगरा की है, मैं अवध का हूँ, अयोध्या का, लेकिन मेरे तमाम स्वादों में आगरा भी मिला हुआ है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे खिलाया हुआ है। तो अब कोई दूसरा आएगा तो वो और कहानी बदल देगा। तो बहुत पवित्रता के साथ घालमेल होता रहता है। और जब गुरु सिखाता है, शास्त्रीय संगीत सिखाता है, तो पहले तो सिखाता है अपने घराने में कि ये बनारस का घराना है, इसको सीखो। फिर जैसे शिष्या या शिष्य उसको सुनाता है, वो नाराज हो जाता है कि तुमने मेरी कॉपी की है, तुमने इसको किया, तुमने अपना क्या किया है, इम्प्रोवाइज कहाँ से किया है, इनोवेशन कहाँ है। वही गुरु तालीम देते समय 20 साल तक उसको दूसरे घराने का सुर नहीं लगाने देता, घोड़े की तरह कान पे चमड़े बांध देता है। लेकिन वही गुरु जब वो लड़की या लड़का गाता है तो नाराज हो जाता है कि अरे तुमने मुझे कॉपी कर लिया, मेरी तरह गा रही हो, तुमने कुछ अच्छा क्यों नहीं किया। अब वो बच्चा क्या करे, तब वो चोरी करना शुरू करता है। फिर वो कहता है कि अच्छा मैं हूं तो बनारस का, लेकिन देखिए ये तान जो है, ये किराना घराने की अच्छी, इसको थोड़ा लगाना अपने गाने में। फिर वो किराना की गाने की तान को ऐसे लगाता है कि उसके गुरुजी भी उस पर आसक्त हो जाते हैं और खुश होते हैं, अरे ये तो क्या बढ़िया बात की तुमने। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां कहते हैं, भीमसेन जोशी कहते हैं, लता मंगेशकर ने कहा है कि मैं भेंडी बाजार घराने की गायिका थी, लेकिन मैं बरकत अली से बहुत खुश थी, बरकत अली किराना घराने के थे, तो मैं उनकी तान भी चुरा के फिल्मों में गाने में लगा देती थी। मन्ना डे ने शिकायत की जाके सलील चौधरी से लता जी की, बोली लता जो गाना तैयार करती है रिहर्सल में, जब रिकॉर्ड में लगता है तो बदमाशी करने लगती। बोली क्या बदमाशी की लता ने? मधुमती का गाना है, दैया रे दैया चढ़ गयो पापी बिछुआ। एक हफ्ते तक प्रैक्टिस हुई, एक हफ्ते तक जब प्रैक्टिस हो गई, जैसे गाने का सारा साज और सारा स्टूडियो जमाया गया, तब तक लता जी ने उसमें उई करके और फिर चढ़ गया, तो वो भूल गए अपने, फिर उन्होंने गाना रुकवाया। बोले लता इसमें खेल करती है, आकर बीच बीच में कुछ बदमाशी करती है, तो लता जी बुलाएगी कि ये तुमने प्रैक्टिस में क्यों नहीं किया। बोले मैं प्रैक्टिस में करूंगी, वहां बदल दूंगी, तो क्या कर लेंगे आप। तो ये कलाकार की महत्ता है, एक बड़प्पन है कि वो क्या करता है, किस तरीके से करता है। आप एक रेसिपी लेकर के आते हैं, किसी से सीख के आते हैं, होटलों में जाती हैं, महिलाएं खाती हैं, पतिदेव को पसंद आ गया, पुत्र को पसंद आ गया, तो घर में आके इम्प्रोवाइज करती हैं, पता चला उसमें सौंफ नहीं पड़ी थी, सौंफ भी डालती हैं, नहीं डालेंगे देखें, जीरा डालेंगे देखें, उसने मेथी डाला था, मैं गृहस्वामिनी हूँ, मेरा किचन है, मेरे हिसाब से मेथी तली जाएगी, और पता चला वो तीसरी कोई पनीर की सब्जी होती है, लेकिन वो होती है, वो संगीत है आपका। तमाम जगह से ला करके आपने बनाया है और उससे खुश होना सीखे। प्योर कुछ भी नहीं होता, प्योर गंगा का पानी नहीं रहा साहब, तो और क्या रह जाएगा, आप बताइए।
जतिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत रोचक बातें बताई और हमारे सभी मेरठ के श्रोताओं की ओर से आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, I hope you all enjoyed the show. Neera Didi, please felicitate Ms. Poonam Deodar. ठीक है,